لوگوں کا ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا ہے ہماری ویڈیوز پر، ہماری تاریخ کا اصلی سہارا کیا ہے؟ ہم یہ سب واقعات اور پرانی باتیں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اور آخر وہ کون سی کتابیں تھیں جن پر مسلمانوں نے ہسٹری کی بنیاد رکھی، اور یہ کتابیں کتنی قابل اعتماد تھیں؟ سب سے بڑھ کر اصل سوال یہ بنتا ہے کہ خود ان قدیم کتابوں کا سورس کیا تھا؟ مسلمانوں کے پاس شروع میں بہت زیادہ کتابیں نہیں تھی، اور دنیا بھر میں تقریباً یہی چند بنیادی کتابیں اسلامی تاریخ کا ذریعہ سمجھی جاتی تھیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی موجود ہے۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا زمانہ آیا۔ ان ادوار میں اسلام کی تاریخ الگ سے نہیں لکھی گئی تھی، کیونکہ صحابہ کرام ابھی تک زندہ تھے اور سب کچھ ان کو زبانوں سے سنا اور سمجھا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، صحابہ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہونے لگے، نئی نسلیں بدر، احد اور خندق جیسے بڑے واقعات بھولنے لگی۔ کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جو اپنے اصل ہیروز خالد بن ولید، عمر، علی کی شجاعت چھوڑ کر باہر کی دنیا، حکمرانوں اور فلاسفروں سے متاثر ہونے لگے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر پہلی بار ایک مسلمان خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ اسلامی تاریخ کو لکھنا ضروری ہے۔ یہ عظیم خلیفہ تھے عمر بن عبد العزیز۔ اقتدار ملتے ہی انہوں نے اس زمانے کے بڑے عالم ابن شہاب الزہری کو بلایا۔ ان سے کہا، مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، صحابہ کے حالات اور اسلام کی اصل ہسٹری ہر جگہ جا کر سکھاؤ۔ اس زمانے میں آخری چند صحابی زندہ تھے، اس لیے ابن شہاب نے ان سب سے براہ راست سیکھا اور یہ علم اپنے شاگردوں تک پہنچایا تاکہ آنے والے دور میں اسلام کی اصل تاریخ محفوظ رہے۔ ان شاگردوں میں دو نام پوری دنیا جانتی تھی، ابن اسحاق اور امام مالک۔ اسی تعلیم کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی پہلی باقاعدہ تاریخی کتاب لکھی، لیکن جیسے ہی کتاب مکمل ہوئی، خلیفہ عمر بن عبد العزیز شہید کر دیے گئے۔ صرف 30 سال بعد پوری بنی امیہ حکومت گر گئی، اور یوں اسلامی تاریخ کی پہلی تحریری کتاب دنیا سے غائب ہو گئی۔ بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی تو ایک نئی حکومت ابھری، عباسی خلافت۔ ان کے دور میں بہت ساری برائیاں بھی تھی، مگر ایک خوبی ایسی تھی جسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکا کہ لوگ علم سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن ایمپائر کے ساتھ بڑی جنگ صرف اس شرط پر روکی اسے افلاطون کی ایک اہم کتاب دے دی جائے گی۔ عباسی بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے دارالحکومت کو ختم کر کے بغداد میں مسلمانوں کا نیا مرکز قائم کیا، اور اس شہر کے اندر دنیا کی سب سے وسیع لائبریری تعمیر کی، جسے آگے چل کر بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم کہا گیا۔ اسی منصوبے نے ابن شہاب الزہری کے مشہور شاگرد ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا، اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک مکمل کتاب لکھو، ایسی کتاب جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے وقت تک سب کچھ جمع ہو۔ ابن اسحاق نے حکم پورا کیا اور مسلمانوں کی پہلی بڑی تاریخی تصنیف لکھی۔ یہ کتاب احادیث کا مجموعہ نہیں تھی، بلکہ مکمل ہسٹری تھی۔ افسوس کہ یہ کتاب بھی وقت کے ساتھ دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ کتابیں بار بار کیوں گم ہو رہی تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے بھی ابھی تک کاغذ بنانے کا طریقہ نہیں سیکھا تھا۔ تمام قدیم کتابیں ایک مہنگے اور نازک مادے پر لکھی جاتی، جسے چرمی یا پراگامنٹ کہتے ہیں۔ اسے بنانے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال ہوتی تھیں، یعنی بہت محنت، وقت اور خرچ۔ اس وقت دنیا میں صرف ایک ملک تھا جسے کاغذ بنانے کی مکمل ٹیکنالوجی آتی تھی، چین۔ چینی بادشاہوں نے یہ علم ہمیشہ سے خفیہ رکھا ہوا تھا، لیکن جلد ہی حالات بدلنے والے تھے۔ عباسی حکومت کے ابتدائی دور میں مسلمانوں اور چین کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں چین کے کچھ ماہر کاریگر مسلمان قیدی بنے، جنہیں پیپر بنانے کا عمل اچھی طرح
यहाँ आता था। यहीं से मुसलमानों ने पहली बार कागज बनाने की टेक्नोलॉजी सीखी। शुरू में इसकी अहमियत पूरी तरह समझ नहीं आई, मगर फिर अब्बासियों के अजीम बादशाह हारून अर रशीद ने इल्म की ताकत पहचान ली। बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री कायम हुई, जहाँ पानी के पहियों से चलने वाली मशीनें मुसलसल कागज बनाती। यूरोप में पहली पेपर मिल मुसलमानों के 300 साल बाद बनी। पेपर के इजाद से एक जबरदस्त इनकलाब आया। अब कोई भी किताब गुम होने का खौफ नहीं रहा था। बैतुल हुकूमत में लिखी जाने वाली हर किताब को हजारों की तादाद में पेपर पर दोबारा लिखकर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इसी दौर को आप इस्लामिक गोल्डन एज कहते हैं। वो जमाना जब हर तरफ स्कॉलर्स पैदा हो रहे थे और हजारों किताबें लिखी जा रही थी। उसी में सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर 6 बड़ी अहदीस की किताबें मरतब हुई। लेकिन अहम मसला अब भी मौजूद था। इब्ने इसहाक की गुमशुदा किताब के बगैर मुकम्मल सीरत और हिस्ट्री की कोई जामिया किताब नहीं थी। ये खला भी जल्द पूरा होने वाला था। इब्ने इसहाक के शागिर्द इब्ने हशाम ने दोबारा इस्लाम की तारीख लिखने का काम संभाला। अब चूंकि पेपर की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, इसलिए उनकी किताब आज तक महफूज है। यही किताब मुसलमानों की सबसे कदीम और जामिया तारीख की बुनियाद बनी और आज आप आसानी से कहीं भी इसका नया वर्जन हासिल कर सकते हैं। इब्ने हशाम के बाद और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस्लाम की तारीख पर काम किया, मसलन अल-वक्दी, जिसमें नेक और अजीम मुसलमान शख्सियात के हालात दर्ज हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसमें गलत बयानी देखी, जिसके बाद इस्लाह की गई और मजीद किताबें लिखी गई, जैसे तबकात इब्ने साद। ये किताब सहाबा की तफसीली कहानियां बताती हैं और इस्लाम की अहम लड़ाइयों का जिक्र करती है। इसी दौर में एक और अहम किताब सामने आई, तारीखुल बतरी। इस किताब में इमाम तिबरी ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्बासी खिलाफत तक मुकम्मल अहवाल लिखा। उनका अंदाज ऐसा था कि शागिर्दों को रोजाना सिर्फ 10 दिनार तनख्वाह मिलती, लेकिन इल्म और सच्चाई के लिए वो अपनी पूरी जान लगा देते। तारीख अल बतरी के बाद भी मुसलमान स्कॉलर्स ने काम जारी रखा, लेकिन अब्बासी खिलाफत कमजोर होने लगी। इस कमजोरी का फायदा यूरोप के बोब और क्रिश्चियन हुक्मरानों ने उठाया, फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। उस वक्त स्कॉलर्स ही थे जो मुसलमानों के दिलों में फलस्तीन को दोबारा फतह करने का जज्बा जगाते रहे। मसलन इमाम इब्ने असार और उनके शागिर्द बाद में फौज लेकर फलस्तीन को फतह करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान एक अजीब किताब लिखी गई, फजाइल यजीद। इसमें यजीद को इस्लाम का हीरो दिखाया गया। इससे बहुत से लोग गुमराह हो गए, लेकिन बाद में इमाम इब्ने जोजी ने यजीद की हकीकत दुनिया के सामने पेश की। यजीद के गलत किरदार को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। ये वो दौर था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को फतह किया और मस्जिद अक्सा पर इस्लामी परचम दोबारा लहराया। सलाहुद्दीन के साथ स्कॉलर्स भी लड़ाइयों में शामिल थे, जैसे इमाम इब्ने असीर, जिन्होंने जंगों के साथ साथ तारीख भी लिखी। इब्ने असीर की किताब में सिर्फ फलस्तीन की फतह नहीं थी, बल्कि इंडिया पर हमला करने वाले पहले मुसलमान हुक्मरान सुल्तान शहाबुद्दीन की कहानी भी मौजूद है। इस जमाने में मुसलमानों की फौज हर तरफ फतह हासिल कर रही थी, लेकिन जल्द ही एक नई तबाही का आगाज हुआ। वो तबाही लाई चंगेज खान। चंगेज खान बम्बोलिया से मुसलमानों की जमीनों की तरफ बढ़ने लगा और एक एक करके शहर फतह करता गया। आखिर में हलाकू खान बगदाद पहुंचा और बगदाद के बाद अंदर मुस्लिम उलमा और अवाम की छोटी छोटी बहसों को देखे बगैर सबको मुसलमान समझकर कत्ल कर दिया। हलाकू खान ने बगदाद में मुसलमानों के लाखों अफराद को कत्ल किया। बैतुल हुकूमत तक पहुंचकर तमाम किताबें दरिया में फेंक दी। ये किताबें इतनी ज्यादा थी कि दरिया के काली रह गई। उसके बाद हलाकू खान ने बगदाद की तमाम पेपर्स फैक्ट्रियां भी जला दी। यूं इस्लामिक गोल्डन एज का अरूज खत्म हो गया। मुसलमान इतने कमजोर हो गए कि उन्हें यूरोप से पेपर मंगवाना पड़ा। यूरोप ने उस मौका को इस्तेमाल किया और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, जबकि मुसलमान अब दिन में सिर्फ 40 सफ़हात लिख सकते थे। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की इजाद के बाद लाखों सफ़हात हर रोज छापे जाते और मुसलमान इस मुकाबले में पीछे रह गए। बाद में कुछ मुस्लिम हुक्मरानों और स्कॉलर्स ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया कि इल्म सिर्फ हाथ से लिखा जाए। इसके नतीजे में मुसलमानों ने इल्म और नॉलेज में यूरोप के मुकाबले में देर कर दी। आखिरी बड़ी तारीख किताबें जो लिखी गई हैं वो है तारीख इब्ने कसीर, अल बादिया व अल नहाया। इसमें आदम अलैहिस्सलाम से
क़यामत तक के तमाम हालात दर्ज हैं और इब्ने खल्दून की किताबें जिन्हें मुसलमान स्कॉलर्स का आखिरी बड़ा काम मानते हैं। यह दौर बताता है कि कैसे इल्म, टेक्नोलॉजी और सियासी हालात ने मुसलमानों की ताकत और असर को बदल दिया। पिछली 100 सालों की मेहनत, हजारों किताबें और इल्म की दौलत, सब कुछ हलाकू खां की तबाही और बाद में यूरोप की प्रिंटिंग मशीन की वजह से बदल गया। अब आते हैं अब्बासी खिलाफत के बाद दौर पर, जब मुसलमानों की ताकत बदतरीज कम हो गई थी। साइंस, इल्म और तारीख की बेशतर किताबें तबाह हो चुकी थीं। दौर में कुरान की तफसीर और इस्लाम की तारीख पर सबसे बड़ी किताब लिखी गई, तारीख इब्ने कसीर। इब्ने कसीर के बाद एक और बड़ा स्कॉलर आया, इलामा इब्ने खल्दून। उनकी किताब आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और उन्हें मुसलमान दुनिया का आखिरी बड़ा स्कॉलर मानते हैं। इब्ने खल्दून की जिंदगी उसी वक्त के माशरती और सियासी हालात को बयान करती है और बताती है कि किस तरह मंगोलों के हमलों के बाद मुसलमान दुनिया में कमजोर हो गए। यूरोप इस दौरान अपनी ताकत बढ़ा रहा था। इब्ने खल्दून के साले वफात के वक्त यूरोप में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने प्रिंटिंग प्रेस इजाद किया और इल्म की दुनिया बदल गई। इस मशीन के जरिए पहले दिन में सिर्फ 40 सफ़हात छपने वाले अब 4000 सफ़हात हर रोज छाप सकते थे। यूरोप ने इल्म में मुसलमानों से आगे निकलना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि मुसलमानों की दुनिया में दोबारा इल्म और नॉलेज के फरोग में देर हुई। इल्म की अहमियत और किताबों का मेयार अब यूरोप ने संभाल लिया और मुसलमान सिर्फ इमारतें और महल्लात बनाने में मसरूफ हो गए। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इल्म की दुनिया बदल गई। मुसलमान अब भी हाथ से लिखने के आदी थे और इसी वजह से वो यूरोप के मुकाबले में पीछे रह गए। यूरोप में यूनिवर्सिटियां और लाइब्रेरियां बनने लगी, जबकि मुसलमानों ने इल्म और नॉलेज में पीछे हटना शुरू कर दिया। इस दौरान मुसलमानों की ताकत सियासी तौर पर भी कमजोर हो गई। इस्लामी सल्तनतें दुनिया में मौजूद थी, मगर इल्म के मामले में यूरोप आगे निकल गया। यूरोप में अब साइंसदान पैदा होने लगे, जैसे न्यूटन, जो इल्म में मुसलमानों से कई सदियों आगे थे। उस्मानिया सल्तनत ने 300 साल बाद प्रिंटिंग प्रेस अपना लिया, लेकिन ये बहुत देर से हुआ। इल्म और किताबों की कमी की वजह से मुसलमान दोबारा आलमी सतह पर अपने मकाम को नहीं पा सके। ये दौर वाज़िया करता है कि इल्म, टेक्नोलॉजी और तारीखी हालात का इम्तजाज किस तरह किसी भी कौम की ताकत और असर को बदल सकता है। यूं मुसलमान का इल्मी बर्तरी ख़त्म हुई और यूरोप ने दुनिया में इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इल्म की अहमियत को दोबारा पहचानना शुरू किया, लेकिन वक्त और हालात की वजह से वो पहले जैसे आलमी असर रसूख हासिल न कर पाए। अब जो किताबें आज हमारे पास हैं, जैसे तारीख इब्ने कसीर, इब्ने खल्दून, तबकान, इब्ने साद, तारीख अल-बतरी, ये सब अजीम स्कॉलर्स की मेहनत वजह से महफूज हैं। ये किताबें हमें इस्लामी तारीख, सहाबा के कारनामे और मुसलमानों की अजीम इल्मी और फौजी कामयाबियों के बारे में बताती हैं। इस्लाम की तारीख में बहुत से इम्तहानात आए हैं, लेकिन इल्म की कदर और उसकी हिफाजत करने वालों ने उसे आज तक जिंदा रखा। हमें उन तारीखी हकाइक से सीखना चाहिए कि इल्म और टेक्नोलॉजी के नज़रअंदाज करना कौम के लिए कितना नुकसानदा हो सकता है। यही वो सबक है जो हमें इस्लामी गोल्डन एज, अब्बासी खिलाफत और बाद के मुसलमानों के हालात से मिलाता है। इनकी हिफाजत, मेहनत और उसका फ़रोग हर दौर में लाजमी है। प्यारे दोस्तों, ये थी इस्लाम की किताबी हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाइए।